G, follicular dendritic cells. Ma'am, they are not like They are not. antigen presenting. They will present that antigen to the B lymphocyte. No, actually they like have processes जिसके अंदर जो जी एंटीजन बिल्कुल या स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्टक हो जाता है, but they don't exactly. like perform the function of APC because they don't have MHC2 molecules over them. G, so then they present it to the B lymphocyte to process to generate an immune response. मैम लेकिन डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आते हैं. Sorry बेटा ऊंचा बोलो. Dendritic cells are for APCs, but follicular dendritic cells are not APCs. The difference is They this. are type of antigen presenting cells. इसके अंदर जो है वो entrapment हो जाती है. ठीक है. मैम इसमें लाइक इंटरडिजिटेटिंग लिखा हुआ था बुक में कि इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं. They are a type kind of. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स. These are kind of follicular dendritic cells. Okay. So we were discussing now. This is we discussed this picture that it has cortex, which is composed of lymphatic nodules. We discussed the lymphatic nodule structure. Then the paracortex. We discussed that paracortex has T lymphocytes and they have high endothelial venules. Here we discussed the medulla. Right now, let's go on to the next structure. That is the thymus. Okay. Now, who is going to tell me about the thymus? G. Let me take out and point out a name. Aman, roll number 7. Yes, ma'am. Aman, आप बताओगी about the thymus? Yes, ma'am. ये हमारी मीडियास्ट्रियम में प्रेजेंट होता है और प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है और it is covered by a capsule and which contain trabeculae that is capsule extend to form the trabeculae और ये ट्रेबिकुले जो हैं वो इनकम्प्लीट लोब्यूल्स बना देते हैं इनवर्ड एक्सटेंड हो गए और मैम इनमें लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं होते और जो कॉर्टेक्स होता है उसमें हाईली डेंस लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और मेड्यूला में इसके फ्यू लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अच्छा ये मुझे बताओ कि what other type of cells are present in the thymus other than the lymphocytes? मैम इसमें कॉर्टेक्स में हमारे पास जो होते हैं टी सेल्स होते हैं और थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं और स्क्वेमस सेल्स होते हैं. ठीक है. How many types of thymo epithelial cells are मैम 3 types. 3. I'm talking about the 3 in the whole thymus, or you are talking about the cortex? मैम थाइमिक एपिथेलियल सेल्स कॉर्टेक्स में जो है वहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्क्वेमस आ जाते हैं और सेटिलाइट आ जाते हैं और स्ट्रेट सेल्स आ जाते हैं. ओके तो टोटल कितने टाइप के सेल्स होंगे मैम होल पूरे थाइमस में कितने टाइप के थाइमो एपिथेलियल सेल्स होंगे 3 टाइप्स के बेटे 6 टाइप्स के होते हैं ना 3 इन द कॉर्टेक्स एंड 3 इन द मेड्यूला ठीक है yes, मैम. अच्छा ये बताओ कि कोई व्हाट इज ब्लड थाइमस बैरियर
जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है? अभी तक किसी ने जिसने कुछ ना बताया। जी अब्दुल्ला, रोल नंबर 80। जी जी, रोल नंबर 80। यस, बोलोगे नहीं तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। वजीहा, बेटा आप फर्स्ट क्लास में नहीं थी? वजीहा, Yes, ma'am. आपने लेट ज्वाइन किया है, फर्स्ट सेशन में नहीं थी आप? मैं फर्स्ट सेशन में लाइट नहीं थी, वो एकदम से चली गई थी। अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज ब्लड थाइमस बैरियर? जल्दी से बताओ बेटा, व्हाट इज ब्लड थाइमस बैरियर? Ma'am, I'm not so sure about it. जो आता है वो बता दो। यू आर नॉट श्योर बट इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट वो बता दो। क्या होता है ब्लड थाइमस बैरियर? नहीं आता? अब्दुल मुकीम, Ma'am, it regulates the exchange of substances. it regulates? Yes. No, it not regulates. It between the circulatory system. What is the function of thymus? Thymus का function क्या है? Ma'am, it avoids the T cells to enter into the circulation. जी अब्दुल्ला, it's you? Yes, ma'am. हाँ चलो बताओ शाबाश, क्या होता है ब्लड थाइमस बैरियर? Ma'am, it मैंने भी comprises यही of बताया था। cells and जी, that form the boundary between the lymphoid tissue and the blood vessel. it forms a boundary between The lymphoid lymphoid tissue. tissue and the blood vessel. Which lymphoid tissue? Thymus. बेटा यही बोलोगे ना, thymus. Because what is the function of thymus? There is development of T lymphocytes in the thymic cortex. So now जो developing lymphocytes हैं उनको prevent करना है to come in contact with the blood. So to prevent that contact, it is forming a barrier. ठीक है? So that the Yes, ma'am. developing T lymphocyte does not come in contact with the blood or the antigens, क्योंकि फिर वो antigenic response mediate हो जाएगा. So to prevent that, blood thymus barrier is formed. Now कौन से ऐसे structures हैं जो ये barrier बना रहे हैं? What component form these barrier? मिस मैं बताऊं? एक मिनट, वजीहा आप कह रही थी कि आप कुछ बता रही थी। वजीहा, मैम मैं यही बताई थी कि it regulates the exchange between the circulatory. नहीं बेटा, रेगुलेट का मतलब होता है कि इट अलाउज, ठीक है? Maintain नहीं? प्रिवेंट, यू हैव टू यूज द करेक्ट वर्ड, प्रिवेंट। Okay, I'll use prevent. हाँ, रेगुलेट जहाँ यूज करोगी ना तो इसका मतलब होता है कि इन और आउट हो रहा है, रेगुलेट Okay. कर रहा है। Okay, ठीक I'll है? note that down. Right. Thank you so much, ma'am.
Now just tell me what are the structures that forms the blood thymus barrier. Wajiha, Ma'am, I'm asking you. Basal lamina, endothelial cells, and matlab they have matlab they consist of epithelial reticular cells and unka basal lamina endothelial cells Which type are of epithelial reticular cells? Which type of epithelial reticular cells? I'm not sure about it, but their basal lamina and endothelial cells are joined by tight Basal junctions. lamina, there is lining endothelium of the cortical capillaries, okay, Okay, with the type 1 epithelial reticular cells. alright. They both form the blood thymus barrier, Okay. and the function is to prevent the developing T lymphocytes of the thymic cortex to come in contact with the blood-borne antigens. Yeah, the barrier keeps antigens in blood vessels and prevents the developing T cells. The prevent is the main word I was using. Regulating is the pele. Okay. Now, the blood thymus barrier, is it present in the thymic cortex or in the medulla or both? कोई भी बता दे. मैम ये सिर्फ थाइमिक कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स में मेडुला में नहीं होता। ठीक है. So it is present only in cortex. अच्छा. Now tell me about the medulla. मेड्यूला में क्या चीज होती है? कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? जी. Yes. मैम एपिथेलियल lymphocytes जी. मैम 3 टाइप्स के कौन कौन से? जी. type 4 thymic epithelial cells, Ma'am, type 5 4, 5 thymic and epithelial 6. cells, and 6 thymic epithelial cells. ओके. शाबाश. टाइप मैम 4 to टी लिम्फोसाइट्स भी होते जी. हैं। जी जी. सो अब थाइमस में जो है वो थाइमिक मेड्यूला में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है which is if you see this picture यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. What is this? बेसल कॉर्पस। बेसल कॉर्पसल. कैसे बनता है ये? जी. कौन से सेल्स बनाते हैं? एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स टाइप 6 के। Type 6 epithelio-reticular cells, these corpuscles, which are also known as Hassels या thymic corpuscles. ठीक है. तो जब भी आपने मेड्यूला की स्लाइड देखनी है, you can see that it has incomplete lobules. ठीक है. And lobules के अंदर you can see the darker peripheral area, which is cortex, and there is inner area, lighter stained medulla having the thymic या Hassel corpuscles. ठीक है. And it is also a capsulated structure from where the trabeculae arises. Now these trabeculae basically divides the substance into incomplete and complete lobules. ठीक है. Yes, ma'am. अच्छा. Now coming to the spleen. Who is going to tell me the spleen? जल्दी से spleen का structure बता दो. एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कि जो है वो Spleen sits in the upper left abdomen. It's protected by the rib cage. It's the largest organ of the lymphatic system. And what about the histological features? Largest lymphoid organ in body.
नो apparent lymphatic nodes यहाँ पर नहीं And it is होती। covered by capsule and dense Ma'am, irregular connective tissue which forms Dense irregular capitulae. It also Okay. contains periarterial lymphoid sheaths. ठीक है, वेट, अभी हम किसी और से पूछते हैं जिसने अभी तक कुछ ना बताया हो। ऐसे काफी लोग हैं। शामीन, आप फर्स्ट सेशन में नहीं थी, यू आर नॉट इन द फर्स्ट सेशन। जी शामीन। यस शामीन। या तुम लोगों ने सबने अपने माइक्स जो है वो म्यूट क्यों किए हुए हैं? मिस वो डिस्टॉर्शन होती है, मैम आप मैं भी बताऊं? जैसे घर वाले बहुत बोलते हैं। डिस्टॉर्शन हो गया। मैम कैन आई टेल? नो नो, लेट गिव अदर्स चांस। जिसने अभी तक कुछ ना बताया फिर आपके पास आएंगे एंड में, ठीक है? पहले हम पूछ लें। लारे बेटा आप बताओ, आपसे मैंने पूछे पहले? नो मैम। जी मैम Spleen स्प्लीन बताओ। जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैप्सूल से कवर्ड होता है। तो ठीक है मैम उसमें शाबाश। जो है कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है इस तरह अरेंज्ड होता है कि वो ट्रेबिक्यूले बना रहे होते हैं। ओके और मैम ट्रेबिक्यूले के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनको हम स्प्लेनिक पल्प कहते हैं। अच्छा, एंड मैम जो पल्प जो होता है मैम वो 2 टाइप्स का होता है, रेड पल्प होता है एंड वाइट पल्प होता है। मैम जो ओके रेड पल्प होता है इट इज कॉल्ड रेड पल्प क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं। और मैम फर्दर उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास स्प्लीनिक कॉर्ड्स और स्प्लीनिक साइनसेस। मैम जो स्प्लीनिक कॉर्ड्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उसमें आरबीसीज, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं। और मैम जो स्प्लीनिक साइनसेस होते हैं वो स्प्लीनिक कॉर्ड्स के बीच में लोकेटेड होते हैं। और मैम उनमें जो है डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जी कौन से सेल्स होते हैं जी? मैम एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है ओके। मैम जो वाइट पल्प होता है उसमें हमारा जो उसका एक मिनट अभी डिफरेंशिएटिंग वाइट पल्प पे नहीं जाओ। जो है वो स्प्लीनिक साइनसेस आप और बताओ, और इसके बारे में कुछ ऐड करो। मैम उसमें एक कोई ऐड करना चाहेगा और कुछ? यस मैम। जी मैम स्प्लीनिक साइनसॉइड से ये भी होता है कि लाइक वो ब्लड से सॉर्ट ऑफ फिल्ड होते हैं, दैट्स द सॉर्ट ऑफ व्हाई कि दे गिव देयर रेड कलर एंड लाइक उनसे स्लोली ब्लड फ्लो भी होता है उनके थ्रू। और वहाँ पे मैक्रोफेजेस भी मतलब एक्सपोज हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ पे टॉक्सिन्स की रिमूवल होता है और लाइक उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड ऑल दैट। अच्छा ये बताओ कि फिर ये जो है वो I just want to ask कि Ma'am, splenic sinuses जो होते हैं they are like capillaries but they are dilated, more dilated, and they have spaces in between them so that the red blood cells can enter or leave them. और इसके अलावा इनके पास रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं which are surrounding them. और अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है वो definitely it has to go into the circulation ना, तो there is concept of circulations. Can you explain that? Open circulation क्या होती है, closed circulation? And I feel जी like ma'am like if is what you're trying to ask is कि like कि मतलब spleen के अंदर it's sort of mixed, it's like I'm open and everything, but like मतलब when it goes out of the spleen it goes into a specific place. Is that what you're trying to ask? I'm just asking what is closed circulation theory and what is open circulation theory. Sinuses जो है उसके बाद blood जो है
see, Miss, we in if we closed talk about circulation, the blood goes into our sinusoids, and in open circulation, it has these sheets that it goes into. so basically these are the sinuses. If you see from here, the bloods, they are undergoing, they go from one sinus to another. It's a closed circulation, ठीक है. अगर यहाँ से हम देखें arterioles से फिर venules, ठीक है. ये जो capillaries का जो connect anastomosing जो connection होता है, this is a closed circulation. Whereas if we see few of the sinuses, they are open-ended. They are not connected with the other sinuses. The arterial system is not connected with the venules. The capillaries are not interconnected. ठीक है. ये जाके open up जो है वो substance पे blood को जो है वो drain करेंगे. They will release their blood. So this is known as the open circulation. The terminal, the arterial capillaries, जो arterioles होते हैं, they basically release the blood openly, not into the other sinus. Ma'am, can you repeat what you just said? If you see from the blood, अगर आपने इसका arterial system वो पढ़ा है पूरा, so that there is the blood, it is coming into the splenic artery, फिर उसके बाद जो है वो central and trabecular arteries बनती हैं, then the basilar artery, right, फिर ellipsoid, finally they reach into the arterioles, the smaller capillaries, ठीक है. If you see these, ये sinuses पे पहुंचे, ठीक है. Now from these sinuses they go, if you see, into the venules. एक ये हो गया, this is known as the closed circulation. For example, अगर आप यहाँ ये picture देखें, मैं आपकी arrow दिख आवाज रहा है. चली गई है. बेटे आवाज नहीं आ रही? आ रही है. मैंने आ रही है. Okay, हो सकता है उनके नेट का इशू हो. So if you see यहाँ पे लिखा हुआ है closed circulation, that the blood is circulating within these systems from arterioles to the venules. This is known as the closed circulation. Whereas अगर आप यहाँ पे देखोगे, the arterioles, they do not have any connection with the venules. They release their blood into the splenic cords. और फिर ये cords से जो है वो sinuses में जाएगा blood. Is this clear? Yes, ma'am. So when it runs from the arterioles to the venules directly, it is the closed circulatory system. Where it is, when it comes into the cords directly, and from the cords it goes into the venous system, this is known as the open circulation. Is this clear? Yes, ma'am. ठीक है. Coming to the white pulp. White pulp कौन explain करेगा? Let me point out. Ikra. Ikra. जी इकरा. इकरा. बेटा कोई उसको मैसेज कर दे कि अपना अनम्यूट कर दे. मैं काफी देर से उनको. आप लोग प्लीज सारे अपना जो है वो अनम्यूट रखें. Mute is all with her. जी इकरा.
जिसको बोला है वो तो अनम्यूट नहीं कर रही। मैम वो शायद उसके कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, क्योंकि मैम इससे पहले मेरा भी कनेक्टिविटी इशू आ रहा था, तो वो आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी मुझे। मैम मोहम्मद अहमद का माइक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। मैंने उनको म्यूट कर दिया है। जी कौन बताएगा? मैं बता देती हूँ। मैं बता देती हूँ। नहीं, आप तीनों के अलावा जल्दी से बता दो, बिकॉज वी आर रनिंग मैम शॉर्ट ऑफ टाइम। व्हाइट पीपल जो होते हैं ना लिम्फोइड टिश्यू पे, लिम्फोइड टिश्यू कंसिस्ट होते हैं उसमें, और वो जो सराउंडेड होते हैं स्प्लीन आर्ट जो स्प्लेनिक आर्टरी से, जिनमें पेरिफेरल लिम्फेटिक शीट और लिम्फेटिक नोड्यूल दोनों इंक्लूड्स होते हैं। इतना मुझे पता है। Central artery होगी ना बेटा? From the splenic artery it enters into the trabeculae. Now when it runs in the trabecula, it is known as trabecular artery. And then when it enters into the substance, the central artery, it is where, and then it is surrounded by the sheath of the T lymphocyte. It is known as central artery. So central artery की position क्या होगी? Between red pupil and white pupils, meningeal zone. It is eccentric in position. Because of the lymphatic nodule, this basically nodules जो है वो उसको push कर देता है to the periphery of the nodule. So it is known as it is present in the eccentric position. अगर हम ये picture देखें and you see this is a lymphatic nodule और इसके peripheral में जो है this is the central artery. ठीक है? Instead of its name central, it's not in the center position. It is in eccentric position. And this constitutes the white pulp of the spleen. Okay. Then coming to the palatine tonsil. जी palatine tonsil कौन बताएगा? हफ्सा। मैम मैंने पूछना था मैम व्हाइट पल्प में कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? व्हाइट पल्प में T lymphocytes. मैम एक टर्म। जी they form a sheath around that sheath is composed of chiefly of T lymphocytes. बेटा आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा बेटा मैं ये कह रही हूँ कि in the periarterial lymphatic sheath mainly it is composed of T lymphocyte. In the marginal zone it is composed of T lymphocyte, B lymphocytes, plasma cells and macrophages. आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, थैंक यू। यस मैम। अच्छा जल्दी से जो है वो मुझे पैलेटाइन टॉन्सिल कोई बता दे। मैम पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स पे जो है कंस्टिट्यूट कर रहा होता है, और इसके बाद इसके नीचे जो है हमारे पास लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो है ना टॉन्सिलर क्रिप्ट्स की फॉर्मेशन होती है। टॉन्सिलर क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स में, और फिर जो जब नोड्यूल्स के नीचे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एरिया होता है वो उसको फिर कैप्सूल बनाता है। ओके ठीक है। So this is a chart which is showing the differences between the important lymph structures, the thymus, lymph node and spleen. इधर एक word use हुआ है MALT. What do you mean by MALT? Mucosa associated lymphoid tissue. क्या चीज होता है?
What is mold? Mucosa Ma'am, it is associated present lymphoid in tissue. respiratory passages and respiratory organs. Respiratory, बेटा mucosa, Passages. तो mucosa of any like digestive हो गया, respiratory हो गया, ठीक है? या Mucosal lining of respiratory, digestive and genital urogenital tract, urogenital tract. ठीक है? तो वहाँ जो है इनके नाम चेंज हो जाएंगे accordingly. Bolt, mold, gall, ठीक है? Yes, ma'am. बेटा ये ऑलरेडी जो है ये गिवन है, जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं ना उसमें ये चार्ट दिया हुआ है, तो अगर आप पीपीटी खोल के गौर से देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है चार्ट. सो डिफरेंसेस आर, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो differences are in the thymus there is cortex and medulla are present. In the lymph node we can also see the cortex and medulla, but it is absent in the spleen and mold. ठीक है Ma'am? lymphoid जी. Ma'am, is it better to study from the PPTs or या फिर books या फिर दोनों coordinate करके करें या फिर सिर्फ ये कौन books? पूछ रहा है? वजीहा. वजीहा बेटा आपको जो है ना बुक्स भी पढ़नी है, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है टाइम शॉर्ट होता है, ये हमने और भी चीजें कवर करनी होती है ना, तो जो है वो स्किप कर लेते हैं. तो इट्स बेटर कि आप पीपीटी को कोऑर्डिनेट करें विद बुक और फिर उसको पढ़ते रहें. पीपीटी में आपके पास टाइम वो एक जो है वो चीजें लाइनअप की हुई होंगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, मैम बुक कुछ मैम कुछ टीचर्स का मैंने अटेंड किया था, वो कही थी कि सिर्फ बुक्स पढ़नी है, कुछ कह रही है कि सिर्फ बुक्स कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पीपीटीज कह रहे हैं. इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन एज वेल. नहीं, it shouldn't create frustration and confusion. Simple, आपको आपने जो है वो पहले पीपीटी से आपने लेक्चर सुन लिया, अब आप बुक खोलोगे और आप उसमें वही सारी चीजें रीड करोगे और फिर आई थिंक आपको बड़े इजीली ये चीजें याद रह जाएगी, बिकॉज वन रीड से आपको कभी भी कुछ मेमोराइज नहीं होगा. तो जब आप पीपीटी एक बार पढ़ोगी, एक रीड आपका ये हो जाएगा. सेकंड टाइम आप बुक खोल के देखोगी, बुक को रीड करोगी तो आपको दूसरी दफा फिर थोड़ा सा एक चीजों का स्टिमुलस मिलेगा टॉपिक का, एंड फिर आपको एक और रीड चाहिए होगी. तो एटलीस्ट फॉर अस पर्सनली जो है वो 3 से 4 रीड्स चाहिए होती थी चीजों को समझने के लिए, पर बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो अब आप कोशिश ये करो कि पीपीटी अच्छे से पढ़ लो और देख लो, और फिर उसको बुक से एक बार जरूर पढ़ो, क्योंकि काफी चीजें मिस हो जाती हैं पीपीटी में भी या लाइव सेशन में भी, तो वो चीजें आपको बुक से जरूर मिलेंगी. ओके, थैंक यू. जी ठीक है. सो दिस इज अ चार्ट व्हिच इज डिस्क्राइबिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द these lymphoid structures. तो ये आप लोगों को बुक के अंदर मिल जाएगा, इवन ये डॉक्टर समा की पीपीटी में भी आपको मिल जाएगा. नाउ कमिंग, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. कमिंग टू द क्विज, नाउ हु इज गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस स्लाइड? पहले तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि किस चीज की स्लाइड है. अभी कौन एंटर हुआ है सबसे लास्ट में? मैंने किसी को एडमिट किया है. नूर फातिमा, इट वाज यू? नूर फातिमा, बेटा जल्दी से ये आइडेंटिफाई करो, कौन आइडेंटिफाई करेगा? Who is going to identify this slide? जी मैम टॉन्सिल्स है. सॉरी, ये टॉन्सिल्स है? मैम टॉन्सिल्स. डू यू थिंक इट्स अ टॉन्सिल? इसके अंदर आपको कोई नहीं, एक मिनट, जिसने टॉन्सिल कहा था पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं. ओके ठीक है, किसने कहा था बेटा ये टॉन्सिल है? नबील. नबील, बेटा आपको टॉन्सिल ये कैसे लगा? इसके अंदर आपको कोई एपिथेलियम नजर आ रही है? मैम जो बीच में सेपरेशन है वो क्रिप्स फील हो रही थी. नहीं, अभी जबकि हमने डिस्कस किया, इफ यू सी दिस पिक्चर हियर यू कैन इजीली सी दैट इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियम. ठीक है, यस मैम. ये बीच वाली क्रिप्ट
को आप ये क्रिप्ट क्यों समझ रहे हो? मैम ये तो थाइमस एक सिंगल रूट है। क्रिप्ट्स तो आपको मल्टीपल नजर आएंगी। इफ यू सी दिस पिक्चर, इस तरह की क्रिप्ट्स नजर आएंगी आपको, इंडेंटेशंस होंगी विद इन द सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तो एक सिंगल सी ही आपको नजर आ रही है, एंड देन देयर इज नो एपिथेलियम इन दिस। ओके मैम। चलो, तो जी, किसी ने क्या, somebody told me that it is lymph node. ठीक है, Yes, ma'am. तो lymph node. Now tell me, identify the structure B. What is structure B? What is structure C, D, E,